Welcome back all the class 9 students to the online classes of Shri Ram Public School. Today we will be seeing the second chapter of your Beehive book, that is The Sound of Music. It has two parts. The first part is Evelyn Glennie listens to music without hearing it. So let's start the line by line explanation of the chapter. So the name of the story is Evelyn Glennie listens to music without hearing it. It is written by Deborah Cowley. Now, what is the title of the story? It's pretty interesting and also very twisting. Why? Because the title says that the person is listening to the music but not hearing it. Then how will the person listen to the music? Yes, you're right. By feeling the music. To know how, let's start the chapter. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. It's about music because she was master in the music. Before we read, let's read the introduction. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels for more deeply than any of us, because she feels music, not only hears it. That is why she expresses music so beautifully. So she is a musician, as you can understand. So God might have taken her hearing but has given something more interesting. Now let's start the chapter. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. So it was a time of rush hour and the crowd was pushing roughly each other to get inside that underground train platform they were standing on. To get inside the train, they were a large crowd was there and they were pushing each other. A slight girl looking younger than her 17 years. So there was a slight girl, a normal girl was there and she was looking younger than her 17 year. Was nervous yet excited. So you can see she was nervous yet excited. As she felt the vibration of the approaching train. So she was nervous also, excited also, and she felt the vibration of the train instead of hearing the coming train. So she was deaf. Yes, you got it right. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. So she was going to some music class in London, and it was, what is the name of the music class? Royal Academy of Music. Daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. So she was from Scottish farm, means Scotland. Farm means कोई village area. So Scotland के किसी गांव से जाने वाली एक लड़की के लिए ये बहुत ही ज़्यादा frightening था, daunting enough था. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. और ये जो aspiring musician है, ये बाकी लोगों से bigger challenge face कर रही थी. क्यों face कर रही थी? Because she was profoundly deaf. Not by birth, but later on she became deaf. Evelyn, so first paragraph आपने देखा कि ये टाइम था अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे कोई तो लड़की खड़ी थी और वहाँ पे क्राउड जो है वो एक दूसरे को पुश कर रहा था. ये लड़की स्कॉटलैंड के एक फार्म एरिया से, मतलब गांव एरिया से थी, तो ये बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड थी और आज इनका पहला दिन था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में. अब एवलिन ग्लेनी के बारे में देखते हैं कि इन्होंने अपनी हियरिंग कोई कैसे. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैज़ बीन ग्रेजुअल. तो इट हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके गई. Her mother remembers noticing something was wrong when she was 8 years old. Evelyn was waiting to play the piano. They called her name. She heard but did not move. She heard or not? She hadn't heard. Yes. So when was it noticed first? It was she was 8 years old और इनको पियानो क्लास के लिए बुलाया जा रहा था. और जब बुलाया जा रहा था तो इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया. तब इनकी मम्मी को समझ में आया there's something wrong. I suddenly realized she hadn't heard. Said Isabel Glennie. और इजाबेल, ये एक इंटरव्यू है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, जिसके बारे में मेंशन किया गया आपके यहाँ पे. तो वहाँ पे इजाबेल ग्लेनी बताती हैं कि वो तब मैंने नोटिस किया कि उसने सुना ही नहीं था. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from her friends and teachers. अब कोई भी नहीं पता चाहेगा ना, जो नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा वो क्यों बताएगा
कि नाउ आई एम नॉट एबल टू हियर और समथिंग लाइक दैट। तो एवलिन क्ले ने भी अपनी डेफनेस किससे छुपा रही थी? अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स से। काफ़ी दिन तक तो छुपा ले गई, बट बाद में क्या हुआ? बट बाय द टाइम शी वॉज 11, अब 8 साल से 11 साल की हो चुकी हैं, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड, उनके मार्क्स जो है वो डिक्रीज होते गए, एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ डेफ स्कूल स्पेशलिस्ट। और अब इनकी हेड मिस्ट्रेस कहती हैं कि बस बहुत हो गया, कि इस स्पेशलिस्ट को ले जाके दिखाइए क्यों इनके मार्क्स में इतनी कमी आ रही है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट शी वॉज हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, और हो सकता है उस टाइम पे दिखाया गया हो तो कुछ रियायत रहती, पर इस छुपाने के चक्कर में अब इनका जो हियरिंग एड था वो सीवियरली इम्पेयर हो गया था। अब इनको बिल्कुल नहीं सुनाई दे सकता था, इनका नर्व डैमेज हो चुका था। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school for the deaf. और उनको एडवाइस किया गया कि अब नॉर्मल स्कूल में ये नहीं पढ़ सकती, अब इनको डेफ के स्कूल में भेजना होगा और इनको हियरिंग एड लगाना पड़ेगा। एड मीन्स हेल्प। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। अब आप किसी अंधे को अंधा क्यों लगेगा, बुरा ब्लैक क्यों लगेगा? जब कोई अंधा हो जाएगा उसके सामने कुछ नहीं दिखेगा। तो एवलिन को क्यों बुरा लगा, क्यों ब्लैक लग गया? क्योंकि एवलिन क्ले की लाइफ थी म्यूजिक, और बिना सुने म्यूजिक वॉज नथिंग। तो एवलिन बताती है कि सडनली सब कुछ ब्लैक सा लगा एक बार के लिए, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएंगी और अपना म्यूजिक में इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगी। She was okay. One day she was noticed a girl playing a xylophone and decided she wanted to play it too. और एक दिन वो नोटिस करती है एक लड़की xylophone प्ले करती है, और वो कहती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि वो भी xylophone प्ले करेंगी ही। Most of the teachers discouraged her, और उनके जितने टीचर्स थे सब लोग उन्हें डिस्करेज करते थे except one. And what is the name of that one teacher? Percussionist Ron Forbes। और रॉन फॉर्ब्स को उनका पोटेंशियल दिखा, और उन्होंने एवलिन को समझाया कि अपने कानों से म्यूजिक मत सुनो, अपने पूरी बॉडी से म्यूजिक सुनना शुरू करो, सेंस करना शुरू करो, फील करना शुरू करो। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स शी स्टार्टेड रियलाइजिंग, आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। और जो हायर ड्रम की म्यूजिक है वो उसके वेस्ट और वेस्ट से ऊपर में फील कर सकती थी, और जो लोअर नोट थी वो वेस्ट डाउन पे फील कर रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. और ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस उनको उनके टीचर रॉन फॉर्ब्स ने कराई, और रॉन फॉर्ब्स की इस प्रैक्टिस के बाद एवलिन को रियलाइज हुआ कि हाँ she could do something, and from that day onward she never looked back. She toured the United Kingdom. उसके बाद वो कहाँ गई? यूनाइटेड किंगडम, एक ऑर्केस्ट्रा के साथ, एक ग्रुप ऑफ बैंड ऑफ पीपल के साथ गई यूनाइटेड किंगडम। When she was 16 and she decided to make music her life, और उन्होंने क्या डिसाइड किया? म्यूजिक को ही अब अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए डिसाइड किया। अब उन्होंने ऑडिशन दिया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और वहाँ जा रही थी, और वहाँ पर उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए थे। उस एकेडमी के पूरे इतिहास में कभी किसी ने उतने मार्क्स अचीव नहीं किए थे। She gradually moved from orchestral performance to solo performances. अभी तक ग्रुप में परफॉर्म कर रही थी, अब वो अकेले परफॉर्म करना शुरू कर दी थी, और अब इनका 3 साल का कोर्स पूरा हो चुका था। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और अब तक उन्होंने सारे टॉप अवार्ड्स जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब के लिए कोई उनको हीरो बोलता है तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है, कहती है वो बिल्कुल नॉर्मल है। कब तक नॉर्मल है? इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और किस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, और अगर अपनी उसी मंजिल के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ पहुँच जाएंगे। आफ्टर शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ some 1000 instrument and hectic international schedule. So here you can see she got almost all the top prizes, and after that she became most sorted, सबसे ज़्यादा जाने जाने वाली। परकशनिस्ट कौन होता है? जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है, ड्रम वाले इंस्ट्रूमेंट। तो ये मल्टी हो गई थी, मतलब बहुत सारे परकशन के इंस्ट्रूमेंट्स ये प्ले कर सकती थी। अब इनको इंटरनेशनली बुलाया जाता था, ये सेलिब्रिटी हो गई थी, और इनका शेड्यूल जो है वो बहुत ही हेक्टिक था। इट इज़ इंट्रिग्विंग टू वॉच। इंट्रिग्विंग मीन्स फैसिनेटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्यूरियस है ये जानना कि जो लड़की सुन नहीं सकती वो एफर्टलेसली इतना प्रॉपर म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस करती है। इन आर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और ये बता रही है, जो उनका इंटरव्यू ले रही है, कि हमारा करीब 2 घंटे का डिस्कशन हुआ था लेकिन एक वर्ड भी उसने गलत नहीं बोला था। और वो बताती हैं
कि क्या मैन विद बुशी बियर्ड, जो बियर्ड वाले मैन होते हैं, गेव मी ट्रबल, उनको बहुत डर लगता है उनसे। क्यों? क्योंकि जब आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो या आप परफॉर्म कर रहे हो तो सामने वाले का एक्सप्रेशन मैटर करता है, और शायद बियर्डेड मैन का एक्सप्रेशन दिखता नहीं था। तो वो कहती है इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, द होल फेस, स्पेशली द आईज। तो कह रही जब आप प्ले करते हो तो ऑफकोर्स द होल फेस दिखना चाहिए, एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, जो सामने वाला है वो सेटिस्फाइड है। तो ये बताती हैं जो इंटरव्यू ले रही हैं, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट। तो जैसे हमारा टोन जो है हमारे जोन पे, एरिया पे बहुत डिपेंड करता है, वैसे एवलिन ग्लेनी का भी जो टोन था वो उनके ओरिजिनल स्कॉटलैंड से थोड़ा सा मिलता जुलता था। और वो बताती है माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। कहती है मैं क्लियरली बोल सकती हूँ क्योंकि मैं 11 साल तक सुन भी सकती थी। बट ये जो इंटरव्यूअर है वो कहती है मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे फ्रेंच और जापानीज दोनों में मास्टर है, बेसिक जापानीज और फ्रेंच में कैसे वो मास्टरी हासिल की हुई है सिर्फ 11 साल की उम्र तक अगर वो सुनती थी। तो इनको समझ में तो नहीं आया पर वो आगे बढ़ती है। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, और बताती है म्यूजिक के बारे में, इट पोर्स इन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूजिक जैसे पोर होता है, कोई चीज़ गिरता है वैसे पोर होता है फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन। जब वो बजता है तो स्किन में फील कर सकती हैं। माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर शी कुड फील फ्रॉम एवरीवेयर। So she says when she plays the xylophone she can sense the sound by passing the stick into her fingertips। और कहती है फिंगर के टिप्स से पास होता है म्यूजिक। और उसके बाद by learning against the drum, और ड्रम कैसे, she can feel the resonances flowing through her body। और जैसे ओपन barefooted बैठ जाती हैं किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे, लिखा है ऐसी, on a wooden platform she removes her shoe so that she can feel the vibration that passes through her bare feet and up her legs। So she can feel the vibration through her legs and it flows through her body। So that is what she says। Not surprisingly, Evelyn Glennie delights her audiences। और कोई सरप्राइज नहीं है कि एवलिन ग्लेने अपने ऑडियंस को जो है बहुत खुश रखती हैं, बहुत डिलाइटफुल महसूस कराती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज। रॉयल फिलहार्मोनिक एक सोसाइटी थी, उसका जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, सोलो परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, वो अवार्ड किसको मिला? एवलिन ग्लेने को। और इनके जो मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं वो बोलते हैं जेम्स ब्लेड, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। शायद भगवान ने उनकी हियरिंग, सुनने की क्षमता तो ले ली पर उनको कुछ इतना ज़्यादा स्पेशल दे दिया है, इतना स्पेशल टैलेंट दे दिया है कि जो नॉर्मल लोग हैं उससे ज़्यादा ब्यूटीफुली ये म्यूजिक को प्रेजेंट कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। और वो ये तो मानती हैं कि वो बहुत मेहनती हैं, काम करती हैं, और कहती हैं आई जस्ट हैव टू वर्क ऑफन हार्डर विथ क्लासिकल म्यूजिशियंस। शी सेज कि क्लासिकल म्यूजिक में थोड़ा सा ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है बट आई लव डूइंग दैट। और उस हार्ड वर्क का जो रिवॉर्ड मिलता है वो एनॉर्मस है। सो यू शुड कीप वर्किंग हार्ड। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, जो रेगुलर कॉन्सर्ट है उसके अलावा भी एवलिन ग्लेने काम किया करती थी। कौन कौन से काम? जो हाई प्रायोरिटी था किसको देती थी? यंग म्यूजिशियंस को देती थी। एन रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रेन, कोई थी एन रिचलिन, वो डेफ चिल्ड्रेन को फंड करती थी। वो क्या कहती हैं एवलिन ग्लेने के बारे में? शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रेन। ऑफकोर्स जो बहरे हो चुके हैं, जिन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी है, वो अगर ये देखें कि बिना सुने कोई म्यूजिक प्ले कर सकता है इतना ब्यूटीफुली, तो येस इट्स अ इंस्पिरेशन। तो एंड रिचलिन कहती हैं कि ये जो है एवलिन ग्लेने वो इंस्पिरेशन है सारे डेफ चिल्ड्रन के लिए। से दे सी दैट देयर इज नो वेयर दे कैन नॉट गो। और उनको दिखता है कि ऐसा कोई कुछ है ही नहीं इस दुनिया में जहाँ वो लोग नहीं पहुँच सकते। एवलिन ग्लेने हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मेनी पीपल टॉइज हर एज। एवलिन ग्लेने अभी तक अपने से दुगनी उम्र के लोगों से ज़्यादा अवार्ड जीत चुकी है, ज़्यादा चीज़ें अकम्प्लिश कर चुकी हैं। शी हैड बॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में जो ड्रम्स हैं वो पीछे बजाए जाते थे, पर एवलिन ग्लेने की वजह से वो फ्रंट में आ चुके हैं। शी हैड गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड एंड पीपल हु look to her and say if she can do it I can do it। और बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें देख के कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो of course I can do it and not the least she has given enormous pleasure to millions। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने बहुत सारे खुशियाँ दी हैं बिकॉज कितने लोग इनसे इंस्पायर हो। ऑफ कोर्स एक पॉइंट था यहाँ पे कि शी ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। जेल और हॉस्पिटल में फ्री कॉन्सर्ट देती हैं ये लोगों के लिए। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच वॉज गिवन इन एट द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। और ये कहा किसने? जेम्स ब्लेड ने। दिस द समरी ऑफ द चैप्टर, यू कैन राइट इफ यू वांट। दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी? 17 year old। When were her deafness noticed? About 8 years old when Isabel Glennie
was they were calling for piano class and she didn't respond. Who helped her to continue with music? Ron Forbes. Name the various places she performed everywhere. UK, she went to Royal Academy of Music, and she also gave performance at the prisons and hospitals, and she was inspiration for young deaf children. How does she hear music? It's explained very clearly. That's all for this part of this chapter. The second part will be there soon. That's all. Thank you. Have a good day.